Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter Constitution Why and How, the first chapter, and under the revised syllabus, all these chapters, chapter 9, which is Constitution as a Living Document, chapter 10, the Philosophy of the Constitution, and chapter 2, Fundamental Rights. All these have come under this chapter Constitution Why and How. Okay. तो आपको इस हिसाब से करना है, बट द कंप्लीट कंटेंट ऑफ दीज चैप्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द रिवाइज सिलेबस, है ना. तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ के वो पोर्शंस कर लिए जो आने थे, जो आपके सिलेबस में है. देन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट हैज़ ऑल्सो बिन डन, and now we are doing this constitution, the philosophy of the constitution. Okay, and one more chapter is left under this chapter, that is fundamental right. तो आज हम लोग कर रहे हैं philosophy of the constitution, and in this philosophy of the constitution we have seen that the constitution is not only it is not something which has only legal aspect. It has some moral aspect as well, and this moral aspect is related to the philosophy of the constitution. And we have also discussed the political philosophy approach to the constitution. And then we see that philosophy of the constitution is very much important, because the same provision can be interpreted in different manner by different people in different context, and it can be misinterpreted as well. So it is very much important to know the philosophy of the constitution, so that the interpretation of the provisions of the constitution should be according to the philosophy of the constitution. That is the basis of the constitution, upon which we can through which we can interpret the provisions of the constitution. And now we see the constitution as a means of democratic transformation. Actually, what we find that constitution is a means through which this democratic transformation take place. Like before the making of the constitution, we will not we have never experienced a democratic government, है ना. But through the constitution this democratic transformation was done. The constitution became a means to bring these changes, है ना. तो ऑटो जिसको हम कह सकते हैं, जो ब्रिटिश रूल था, जो विच वाज नॉट डेमोक्रेटिक. सो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हो पाया, है ना. और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर constitution का होना. We cannot have a democracy without constitution, because constitution restricts the exercise of power, है ना. In today's time the states are very powerful, and they have monopoly over force and coercion. So it is very much important that the power of the state must be limited. So because there is a possibility of this, that institution of states may fall into wrong hands, who may abuse the power. So it is very much important that the institution which are created for our safety and for our well-being, they should remain like that only. They should not turn against us. So for this, what is required for this? There is requirement of some rules which is given in the constitution, है ना. And we have seen such things happen. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम कह रहे हैं, ये इतना ईजी नहीं होता है डेमोक्रेसी में ट्रांसफॉर्म हो जाना.
कई बार ऐसा हुआ कि जो इंस्टीट्यूशंस लोगों के लिए क्रिएट किए गए वो इंस्टीट्यूशन लोगों के ही अगेंस्ट हो गए, है ना. And these institutions started to harm the interest of at least some individuals and groups in the society. So we need to draw the rules of the game, है ना, in such a way that this tendency of a state is continuously checked. There should not be such possibility कि institutions इस तरह से हमारे जनता के against turn up हो जाए, है ना. सो कॉन्स्टिट्यूशन ये बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है और स्टेट को टायरेनिकल बनने से रोकता है. कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए भी प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि पीसफुल और डेमोक्रेटिक मीन्स से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आ पाए. लाइक जब तक हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले का अगर टाइम देखते हैं तो हमारे सोसाइटी में जिस तरह के कास्ट इनइक्वालिटीज़ थे वो सारे कास्ट इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म किया गया डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू. सो हाउ दीज चेंजेस केम अबाउट थ्रू पीसफुल मैनर ओनली ना. ये जो कुछ भी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये पीसफुल मैनर में हुआ. सो it was peaceful because everything was given in the constitution, and Nehru was very much aware of both these points. First of all, democratic transformation, and second, social transformation. सोसाइटी में हम जो कुछ भी चेंजेस लाना चाहते हैं वो कैसे आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही आएगी, है ना. और इसलिए हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया. और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे दे वर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन पीपल, है ना. सो सेकेंड थिंग वी सी कि नेहरू का ये कहना था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज़ नॉट जस्ट अ बॉडी ऑफ पीपल और गैदरिंग ऑफ एबल लॉयर्स, इट इज़ अ नेशन ऑन द मूव. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड बाय नेहरू, नेशन ऑन द मूव, है ना. नेशन जो है वो मूव कर रहा है थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द नेशन इज थ्रोइंग अवे द शेल ऑफ इट्स पास्ट पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर. जो स्लेवरी का स्ट्रक्चर हमारे ऊपर था, जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ का स्ट्रक्चर, हम उन सबको हमने थ्रो कर दिया थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एंड हमने एक नए कपड़े हमने अपने लिए बनवा लिए. ये नया कपड़ा क्या है, डेमोक्रेसी का है. ये नया कपड़ा जो है वो सोसाइटी में इक्वालिटी लाने वाला है ना. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिज़ाइनिंग ही हुई वो इस तरह से हुई ताकि जो ट्रेडिशनल सोशल हायरार्कीज़ हैं उनको एंड किया जा सके और एक नया वी कैन अशर into a new era of freedom, equality and justice. So the constitution is not only a means to limit the power of the government, but actually constitution empower those who are who have been traditionally deprived of it, जिनको आज तक पावर नहीं मिला, जो हर समय पावर से दूर रहें, उनको एम्पावर करना. दिस इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन गिव वल्नरेबल पीपल द पावर टू अचीव कलेक्टिव गुड. दिस इज वी कैन से दिस इज द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी. ये है डेमोक्रेसी जहाँ पर कल तक जो बिल्कुल ही प्रताड़ित था, दलित था, शोषित था, आज उसको पावर मिला. दिस इज डेमोक्रेसी and it became possible because of the constitution. So this is the important rule of the constitution. This is, we can say, everything, these all things are there in the philosophy of the constitution. आखिर constitution किस ideology पर based है ये उसको बताता है ना. And now we see कि many times we need to go back to the constituent assembly. That's why I told you earlier also कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी डिबेट्स होते थे, चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो, रिटर्न तो है, ओरल भी स्टेटमेंट्स जो दिए गए डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की तरफ से, वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट
के नाम से वो एक 12 वॉल्यूम की बुक है जो कि हमारी पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में रखी हुई है. सो मेनी टाइम्स whenever there is ambiguity in the provision of the constitution, or there is any kind of conflict between different organs of the government regarding the provision of the constitution, at that time we need to go back to the constituent assembly debate, है ना. हमें फिर से वहाँ पर जाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि whatever is written in the provisions of the constitution, that may not be very clear कि आखिर एक जो प्रोविज़न बना है उसके पीछे इंटेंशन क्या था. प्रोविज़न तो हमें दिख गया, ठीक है, बट उसके पीछे मेन इंटेंशन क्या वर्क कर रहा था, जब हम वो जानेंगे तभी उस प्रोविज़न का हम सही ढंग से इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे, और जो कुछ भी एम्बिग्युइटी आ रही है रिगार्डिंग दैट प्रोविज़न वो क्लियर हो पाएगी. सो मैनी टाइम्स we need to go back to the constituent assembly so that we can become aware of the principles and ideologies which were guiding the members of the constituent assembly. We can say the philosophy of the constituent as the philosophy of the constitution, which we can understand only by these debates on constituent assembly. जो 12 वॉल्यूम की बुक है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है. Okay, and now we come to the this is the last segment of this chapter. What is the political philosophy of our constitution? हमारे constitution का political philosophy है क्या, है ना. इसमें हम बहुत सारे different principles देखेंगे, ideas देखेंगे, which are the political philosophy of our constitution. Okay, so the question is, what is the political philosophy of our constitution? Okay, so we see that we cannot describe the philosophy of the constitution in a single word, है ना. Our constitution is liberal, it's democratic, it's egalitarian. Egalitarian मतलब क्या होता है? Equality, the society which is based on equality. तो our society is liberal, democratic, egalitarian, secular and federal, है ना. It is open to community values, sensitive to the needs of religious and linguistic minorities, as well as historically disadvantaged group like scheduled caste, scheduled tribes. इन सब के लिए हमारे constitution में कुछ provisions है ना. And our constitution is committed to build a common national identity. So these are the, we can say, basic principles of the constitution. And the constitution is committed to freedom, equality, social justice, and in some form national unity, है ना. और इन सब के साथ में एक बिल्कुल ही हमारा जो एम्फेसिस है वो है एक पीसफुल और डेमोक्रेटिक मेजर्स के थ्रू इन सारे फिलॉसफी को प्रैक्टिस में लाना, है ना. जितने भी जो भी फिलॉसफीज़ हैं उन सबको प्रैक्टिस में लाना, ठीक है. सो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन different political philosophies. The first is individual freedom. So the first political philosophy is individual freedom, and we see that our constitution is committed towards individual freedom, and in this regard we must remember that this commitment was not an outcome of only whatever was discussed in the Constituent Assembly in its meetings. What we find that actually
there was continuous intellectual and political activity of over a century behind this philosophy of individual freedom. We can see when this 19th century began, Raja Ram Mohan Rai, he protested against curtailment of the freedom of the press by the British colonial state. So you can see we are talking about beginning of the 19th century, and it was the argument of Ram Mohan Rai that a state responsive to the needs of individual must provide them the means by which their needs are communicated. है ना? If the state wants to respond towards the needs of individual, the state must provide them the means through which they can communicate their needs. It is only through press that the people can communicate, people can express their demands. So the freedom of press is very much required. That was the opinion of Ram Mohan Rai in early 19th century. And we see that the Indians continued to demand a free press throughout the British rule. And this is the reason that when we got independence and the constitution was in making, this freedom of expression became an integral part of our constitution. है ना? So likewise there is another freedom which is very much important, like freedom from arrest, arbitrary arrest. There was a Rowlatt Act which was passed in the year 1919, and this Rowlatt Act was that the people can be arrested without trial, है ना? अगर उन पे चार्ज लग रहा है राजद्रोह का, तो उनको बिना किसी ट्रायल के उनको अरेस्ट किया जा सकता है. तो इसके अगेंस्ट नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, है ना, जिसमें कि हम, क्योंकि ये हमारे बेसिक फ्रीडम को, राइट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट के अगेंस्ट था, है ना. तो इस कारण से इसकी डिमांड भी थी, और यही कारण है कि इट ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. तो इसी तरह से जितने भी फ्रीडम की हम बात करें, वो सब फ्रीडम की जो अगर रूट हम देखेंगे, तो वो रूट ये नहीं कि 2 साल 11 महीने 18 दिन जो कि टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, उस दौरान ये चीज़ें सामने आई, बल्कि इसकी डिमांड जो थी वो पिछले 100 सालों से हो रही थी, है ना. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही लिबरल है, क्योंकि इसके अंदर लोगों के, इंडिविजुअल इज़ द फोकस, है ना. लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, एंड ये बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिविजुअल फ्रीडम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है. एंड हम ये भी देखते हैं कि ओवर जितने साल बीत चुके हैं, जितने साल पहले, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले से ही, जबकि कांग्रेस जो थी वो नेशनल मूवमेंट पे पूरी तरह से, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्टिव हो चुकी थी, तो अगर हम देखें तो ये करीब 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने इंडिविजुअल राइट्स को अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिमांड के हमेशा ही वो रखती आई, है ना. और ये कांग्रेस के लिए ये एक नॉन निगोशिएबल वैल्यू था, जिस पर वो निगोशिएट करना नहीं था उसे, ये तो चाहिए ही चाहिए. और ये सारी चीज़ें हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में नज़र आती है, ठीक है. तो पहला जो हमारा पॉलिटिकल फिलोसफी है, दैट इज इंडिविजुअल फ्रीडम. इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, दैट इज सोशल जस्टिस. ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लिबरल, है ना. लिबरल मीन्स अगर हम देखें तो लिबरल का यही मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको इम्पोर्टेंस देना, है ना. राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल आर इम्पोर्टेंट. दिस इज लिबरलिज्म. लिबरलिज्म का मतलब यही हो रहा है कि इंडिविजुअल को कम से कम उनके राइट्स पे कर्टेलमेंट ना हो, कंट्रोल्स ना हो.
और जब भी इंडिविजुअल के राइट्स पे कर्टेलमेंट लगते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, क्यों लगते हैं? सोसाइटी के इंटरेस्ट में, है ना। जब भी हम इंडिविजुअल के राइट्स को हम वो करते हैं, कर्टेल करता है स्टेट, तो किस बेसिस पे करता है कि ये सोसाइटी के हित में है, इसलिए हम इंडिविजुअल के राइट्स को कर्टेल कर रहे हैं। तो ऑन दी वन हैंड वी आर सेइंग दैट our constitution is liberal because it gives emphasis to individual freedom, but on the other hand we are saying that social justice is one of the most important political philosophy of our constitution. So we can say that these two are contradictory to each other. You can't give importance to both at the same time, individual freedom and social justice. But here we see that our constitution differs from the western version of liberalism. अगर लिबरलिज्म का जो वेस्टर्न वर्जन है उसमें ये बात कही गई है कि लिबरलिज्म का मतलब होता है कि इंडिविजुअल को पूरी तरह से फ्रीडम देना, सोसाइटी के लिए भी उसके फ्रीडम को ऐसा नहीं कि कर्टेल नहीं होना चाहिए। बट हमारा जो लिबरलिज्म का वर्जन है दैट इज़ डिफरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्या कि हमारा जो लिबरलिज्म है इट इज़ लिंक टू सोशल जस्टिस, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज़ प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, है ना। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनका ये नहीं था कि सिर्फ हम राइट टू इक्वालिटी दे दें और उससे जो जिसको हम कहें कि सदियों से जो इनइक्वालिटीज़ चली आ रही थी, कास्ट इनइक्वालिटी चली आ रही थी, वो ख़त्म हो जाएगी ओनली बाय गिविंग इक्वल राइट्स टू ऑल, only by giving them right to equality ki all are equal in the eyes of law. There cannot be any kind of discrimination on the basis of caste or religion or gender or anything like that, है ना। तो it was not possible to overcome the age old injustices only by granting this right to equality to all. What was important that some special constitutional measures must be there in order to advance the interest of those who were deprived from the centuries. अगर हम सही में उन डिप्राइव लोगों को आगे लाना चाहते हैं तो सिर्फ राइट टू इक्वालिटी इज़ नॉट सफिशिएंट, उसके लिए कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स करने होंगे, है ना। एंड दैट इज़ द रीज़न आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स provided a number of special measures to protect the interest of these people, like the people who belong to scheduled caste and scheduled tribes. उनके लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाएगी कि लेजिस्लेचर में उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, बिकॉज अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो दे विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट, है ना। एंड इतना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर जॉब्स को में भी उनके लिए रिजर्वेशन कर सकती हैं. सो दीज आर द we can say instances how our constitution makes a balance between individual freedom and social justice, है ना. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों को इम्पोर्टेंस दिया गया है, इंडिविजुअल फ्रीडम को भी और सोशल जस्टिस को भी. ठीक है. ओके, सो दिस इज आवर second important political philosophy. The third is respect for diversity and minority rights. रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में इक्वल रिस्पेक्ट को एनकरेज करता है. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आवर कंट्री इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, है ना. पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट traditions, different languages are living together. So the country is full of diversity. There are many minorities groups, religious minorities, linguistic minorities. So our constitution gives equal respect to all, but it is not easy, है ना.
what we find that communities do not always have a relationship of equality. There is a kind of a tendency of hierarchical relationship, है ना. कई बार ये चीज़, हम इस चीज़ को अपनी सोसाइटी में फील करते हैं कि इक्वलिटी नहीं होती है. जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ होते हैं उसमें से कोई एक कम्युनिटी अपने आप को सुपीरियर मानती है, दूसरी कम्युनिटी को वो इन्फीरियर मानती है. हायरार्किकल, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, बराबर का नहीं होता है. अगर हम सोसाइटी को प्रैक्टिकली देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कह दिया कि हर कम्युनिटी को हम बराबर करेंगे, बराबर का दर्जा देंगे, लेकिन कम्युनिटीज़ की ये आउटलुक ही नहीं होता है कि वो अपने आप को बराबर, वो उनका हायरार्किकल ही सोच होती है ना. दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं वो अगर एक दूसरे के बराबर भी मान लिया कि एक दूसरे के बराबर भी कुछ कम्युनिटीज़ दूसरे को अपने बराबर मानती है, तो फिर उनके बीच में राइवलरी होती है, उनके बीच में पीसफुल रिलेशन नहीं होता है. सो ये जो है ये हमारे मेकर्स जो थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. हाउ टू मेक कम्युनिटीज़ लिबरल इन देयर अप्रोच, है ना. कैसे उनके अप्रोच को लिबरल बनाया जाए, इस तरह की सोच को नहीं आने दिया जाए. हाउ टू फोस्टर अ सेंस ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट अमंग दैम, है ना. जो हायरार्की है या फिर अगर उनके बीच राइवलरी भी है तो उसको भूल करके वो एक दूसरे को इक्वल रिस्पेक्ट दे. कैसे इसको कॉन्स्टिट्यूशन आंसर करेगा, ये बहुत ही मुश्किल एक सवाल है ना. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए भी बहुत ही मुश्किल रहा होगा इन चीज़ों पर प्रोविजंस को लाना, है ना. सो इसके लिए एक जो तरीका है वो ये होता है कि जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनको आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करिए एज ए डिफरेंट कम्युनिटीज़. जैसे कि कई सारे वेस्टर्न जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यही किया गया है कि आप कम्युनिटीज़ को रिकॉग्निशन ही मत दीजिए, कि डिफरेंट जो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है आप उसको रिकॉग्नाइज ही मत करिए. लेकिन हमारे कंट्री में ये पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज इंडियंस जो है ना, दे आर वेरी मच अटैच टू देयर कम्युनिटीज़. हमारी ये नेचर है, इट इज़ इन आवर नेचर दैट हम अपनी कम्युनिटी से बहुत बुरी तरह से जुड़े हुए हैं. और ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो कम्युनिटीज़ को रिकॉग्नाइज ना करे. रिकॉग्निशन तो आपको देना पड़ेगा, वेस्ट की तरह यहाँ पर नहीं हो सकता है ना. डिफरेंट जो कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं उससे हम अपने आप को हम बिलोंग करते हैं. और हर कम्युनिटी जो कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं उनके अपने वैल्यूज़ हैं, उनके अपनी ट्रेडिशन हैं, कस्टम्स हैं, लैंग्वेज है, जो उस कम्युनिटी के लोग ही उसको आगे बढ़ा रहे हैं, है ना. लाइक अगर हम देखें कि फ्रांस और जर्मनी में जो इंडिविजुअल्स हैं उनका एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी होता है. जैसे फ्रेंच बोलने वाले फ्रांस में जो लोग हैं, दे आर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, तो उनका एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हो गया. और ये लैंग्वेज उनके बीच में बहुत बड़ा बाइंडिंग फैक्टर है, उनको जोड़ने वाला फैक्टर है. और हमारे यहाँ क्या होता है, हम जो है वी हैव मोर ओपनली एक्नॉलेज द वैल्यू ऑफ कम्युनिटीज़. जो कम्युनिटीज़ के वैल्यूज़ है ना, वो हमारे बाइंडिंग फैक्टर है. हमारे यहाँ उस तरह का बाइंडिंग फैक्टर नहीं है जिस तरह का वेस्ट में है. इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं. अगर हम जर्मनी और फ्रांस जैसे कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पर जर्मनी और फ्रांस जैसे कंट्रीज़ में उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, ना तो रिलीजन को लेकर के, ना ही लैंग्वेज को लेकर. लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए कि इस बात को आंसर किया जाए कि कोई भी जो कम्युनिटी है वो सिस्टमैटिकली दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे, बल्कि उनके बीच में इक्वालिटी का रिलेशनशिप हो, है ना. और इसी कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ा कम्युनिटी बेस्ड राइट्स को. आपने अभी नहीं पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं. तो ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया ताकि डोमिनेशन ना हो.
और हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ा डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये पॉसिबल नहीं है कि आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करिए, उसको भूल जाइए, है ना। तो इसको हम लोग कल की क्लास में वी विल कंटिन्यू दिस, ओके।